Hello everyone. In the last video lecture we talked about the Laplace transform of Bessel function and error function. So today we will talk about Laplace transform of exponential integral function, sine integral function, cosine integral function. Okay. So let us start. Laplace transform of exponential integral function. So this is your exponential integral function. This one. Okay. This is denoted, generally it is denoted by et. So et is equal to t to infinity e raised to power minus x divided by x dx. Okay, I suppose this is a function of t. हम इसे लेके चलते हैं. I say this is equal to ft, right? इसे. So ft is equal to this one. Okay, and if I change the limit t to infinity है, इसे मैं infinity to t change करता हूँ, then there will be the negative sign. Okay, it will be written like this. And when you differentiate it by using the Leibniz rule, because you can see that there is a limit which is variable here. Okay, so आपका यहाँ फंक्शन t का है एंड t हमारे यहाँ पर लिमिट है. ओके, सो वेरिएबल लिमिट हो तो हाउ टू टेक द डिफ्रेंशिएशन. जब इसका डिफ्रेंशिएशन मैं इस साइड में लूँगा दैट इज एफ डैश टी और डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, राइट. दैट विल बी इक्वल टू व्हाट. यू विल टेक दैट d by dt of, so you will write down minus sign is here, d by dt of this one, d by dt of whole integral, that means this integral, right. When you take its differentiation, so how it will be, then integral d by dt go to inside and that becomes the partial derivative. It will be infinity to t, that will be infinity to t curl by curl t of e raised to power minus x divided by x. Okay, then plus derivative of the upper limit with respect to t. So upper limit is t, so its derivative will be dt by dt, right, into value of the function at upper limit. तो वैल्यू ऑफ फंक्शन मेरा क्या है, e raised to power minus x divided by x. तो अगर x की जगह t पुट करते तो क्या हो जाएगा, e raised to power minus t divided by t, right, प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ द लोअर लिमिट. लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिट. सो दैट वैल्यू यू विल टेक दैट डी बाई डी टी ऑफ दिस वन. ओके, so infinite and there is some constant value. Okay, so that means when you take its derivative that becomes 0, or you can say that into value of the function at lower limit into, you will take that into minus e raised to power minus infinity divided by infinity. So when you solve it, that becomes 0, right. So this terms becomes 0, so we have only this term. And over here you can check that कि ये function आपका t का तो नहीं है, तो t का नहीं है तो ये कांस्टेंट होगा, तो अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t लोगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा. ओके, सो ओनली वन टर्म विल बी लेफ्ट, तो ये टर्म बचेगी केवल आपकी इधर. सो आई एम राइटिंग डाउन दैट पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, सो यू विल गेट दिस वन. जो भी सोल्व किया एफ डैश टी विल बी इक्वल टू, फर्स्ट टर्म आपकी 0 हो गई, सो जो सेकंड टर्म थी दैट विल बी डी बाई डी टी ई रेस्ट माइनस डी बाई टी एंड थर्ड टर्म 0 हो गई. ओके, ये आपका डी टी बाई डी टी तो 1 हो गया, तो ई रेस्ट ओवर माइनस टी डिवाइडेड बाई टी यू हैव. दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट टी इंटू एफ डैश टी इज इक्वल टू ई रेस्ट ओवर माइनस टी, राइट. सो नाउ यू टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. व्हेन आई टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सो इट विल बी Laplace transform of t into f dash t is equal to Laplace transform minus e raised to power minus t, then minus sign taken outside. You know the formula for this. पहले हम जब भी Laplace transform of t into ft करते हैं, so what is the formula to open that Laplace transform? So सबसे पहले हम जो t के मल्टीप्लाई में फंक्शन है पहले उसका Laplace transform निकालते हैं, और ft का Laplace transform हम जनरली किससे लिखते हैं, fs से. फिर जो आया है उसको डेरिवेटिव करेंगे, टी की पावर देख लीजिए कितनी, टी की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो हम उसको डेरिवेटिव करेंगे 1 टाइम डी बाई डी एस और माइनस वन रेस्ट पावर 1. ओके, तो सिमिलरली हमने यहाँ पर भी यही किया है. पहले एफ डैश टी का देखिए, एफ डैश टी का हमारा लाप्लास क्या होता है, एस इंटू एफ एस माइनस एफ जीरो होता है. ओके,
और इंटू में टी है इसलिए -1/1 और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, राइट। सो यू ओपन दिस एंड राइट हैंड साइड में माइनस साइन एंड e⁻−t का डेरिवेटिव क्या होगा, बाय यूजिंग द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इट विल बी 1/s+1, राइट। नाउ you can check that, so it will be minus sign will be cancelled out, this minus sign. So d by ds of sfs minus f0, what is f0? So f0 अगर हम ऊपर देखते हैं, so ft अभी आपने सपोज किया था, ft आपका ये था, दिस वाज द ft। तो अगर मैं t को 0 पुट करता हूँ तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट मेरी बन जाएगी इन्फिनिटी टू 0, और यहाँ पर ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन होगा dx, ओके। जो भी इसका इंटीग्रेशन आएगा तो सोल्व करने के बाद आपके पास क्या मिलेगी, ये कांस्टेंट वैल्यू, राइट। सो व्हेन यू हैव द कांस्टेंट वैल्यू, सो यहाँ पर फंक्शन f ऑफ 0 की जगह वैल्यू क्या आएगी आपकी, कांस्टेंट, यहाँ पर। तो ये कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू डी एस, सो दैट विल बी 0, सो दैट्स वाई वी विल नॉट राइट डाउन 0, सो वी जस्ट राइट डाउन डी बाई डी एस ऑफ एस एफ एस, ओके। एंड राइट हैंड साइड में 1/s+1, क्योंकि माइनस साइन पहले ही कट चुका है आपका, राइट। now we take the integration both side. When you take the integration, so integration with respect to s, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लेंगे तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन विल बी कैंसिल आउट एंड इट विल बी s इंटू एफ एस, और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/s+1 है, इट विल बी log of s+1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, just we take the limit s tends to 0 both side, okay। So you will get an idea why we are doing so. So it will be doing in this way, s tending to 0. So when you take s tending to 0 over here and over right hand side also, so it will be s tending to 0, s tending to 0 of this one, right. So it will be s tending to 0, and what it will be, this one, when you take s tending to 0, that will be log of 0 plus 1, log 1, and log 1 will be 0, so that's why it will be 0 plus c, it will be c, okay। Now what you have to do, we will use now final value theorem. So what the final value theorem says, that if you are taking the limit, final value theorem says that limit t tends to infinity ft is equal to limit s tends to 0 sfs, okay। दिस इज द फाइनल वैल्यू थ्योरम। और इसी तरीके से इनिशियल वैल्यू थ्योरम भी होती है एक आपके, लिमिट t टेंड्स टू 0 f ऑफ t दैट विल बी इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s इंटू एफ एस, ये आपकी इनिशियल वैल्यू थ्योरम है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, राइट। और ये आपके फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, राइट। तो हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो, इधर हम यूज कर रहे हैं, ये आपकी s टेंडिंग टू 0 एस एफ एस था, लेकिन ये किसके इक्वल है, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ टी के इक्वल है फाइनल वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या रख दिया, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ टी, ओके। एंड राइट हैंड साइड में तो c है आपका, राइट। सो अभी हम फाइनल वैल्यू थ्योरम भी देखेंगे कि वो कैसे आती है, ये वैल्यू इसके इक्वल कैसे है, वो भी अभी हम देखेंगे थ्योरम को। पहले हम ये देख लेते हैं, रिजल्ट यूज करते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 एस एफ एस किसके इक्वल हो गया, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ टी। सो व्हाट इज दिस वन, एफ टी हमें पता है कि एफ टी हमारे पास था इन्फिनिटी टू टी, ओके। और वट एवर जो एफ टी की वैल्यू है आपके ऊपर, आप उसमें टी को इन्फिनिटी पुट कर दीजिए, सो दिस इज योर एफ टी। यहाँ पर अगर टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेता हो तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो आपकी लिमिट अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाती है, देन द इंटीग्रेशन विल बी 0, राइट। सो यू विल से its value will be, when you will write down, so its value, that value will be 0, so you will say 0 will be equal to c, that means c की वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो हमें यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू ही रखनी थी, तो यहाँ पर अगर मैं c की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो कहेगी लिमिट s टेंड्स टू 0 एस एफ एस किसके इक्वल आ गया, सॉरी, लिमिट नॉट हियर,
over here. Yes, that was the integration. This was the integration. Over here, when you use SC is equal to 0, so you will get SFS is equal to log of S plus 1 only. Okay, so when we find out the value of Fs, that will be 1 upon S into log of S plus 1, right? So हमने Fs का क्या है, Fs क्या है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, लेकिन ft हमने किससे माना था, जो शुरू में हमारा et था उसे ft माना था, तो ये चीज़ क्या हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ et, राइट? सो दैट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ et मेरे पास क्या आ गया 1/s इंटू लॉग ऑफ s प्लस 1. ओके, सो एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास होता है 1/s इंटू लॉग s प्लस 1. जस्ट यू रिमेंबर दैट. ओके, now we use the final value theorem. Let we prove the final value theorem. So final value theorem अभी हमने रिजल्ट बताया था. What was that? When you are taking the limit t tending to infinity ft, that will be equal to limit s tends to 0 of sfs. यहाँ पर fs तो आपको पता है, ये क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, राइट? नाउ प्रूफ करते हैं इसका. हम लेकर चलते हैं एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर चलते हैं. लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश टी का क्या होता है, यू नो द फॉर्मूला, दैट विल बी एस इंटू एफ एस माइनस एफ जीरो. यहाँ पर जो एफ एस है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है. ओके, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को फार्मूला अप्लाई करता हूँ, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट इज, इसका डेफिनेशन लगाता हूँ तो दैट विल बी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, और एफ टी की जगह क्या एफ डैश टी, राइट हैंड साइड एज कैसे, राइट? So what I do now, I just take the limit s tending to 0 both side. Okay, I am taking the limit s tending to 0 both side. तो over here left hand side and right hand side, इसे इस साइड में लिख दिया, इसे इस साइड में, right? This is the same actually. तो limit s tending to 0 of this one, limit s tending to 0 of this one. Now you can check that when you take limit s tending to 0 of this part, so what it will be, that term will be as it is, you keep it as it is. When you take limit s tending to 0 over here, so the limit will go inside, so that means you will take the limit over here, limit s tending to 0, because s is over here only, so s tends to 0, e raised to power 0 becomes 1, so it will be 0 to infinity f dash t only, 0 to infinity f dash t. जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे f dash t का, तो इंटीग्रेशन क्या होगा ft, so ft आ जाएगा इंटीग्रेशन एंड लिमिट इज 0 to infinity. ओके, सो वी अप्लाई दैट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. जब इन्फिनिटी लिमिट हो तो उसे डायरेक्ट पुट नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ टी, उसे इस तरीके से लिखेंगे. ओके, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ टी एंड माइनस, इसे लिख सकते हैं लिमिट टी टेंडिंग टू 0 एफ टी. ओके, जब टी की वैल्यू आपकी 0 है तब एफ टी की वैल्यू क्या आई थी आपकी, जो सॉरी, जब टी टेंडिंग टू 0 है तो एफ टी क्या बनेगा आपका एफ जीरो, राइट? So that will be f0, or this is t tending to infinity ft. So and to the left hand side में भी आपके पास क्या था, limit s tending to 0 sfs और minus f0. okay, तो left hand side and right hand side there is minus f0, so this minus f0 will be cancelled out, so you will get limit s tending to 0 sfs will be equal to limit t tending to infinity ft. इसी को बोलते हैं हम फाइनल वैल्यू थ्योरम, जिसका रिजल्ट हमने अभी ऊपर वाले प्रूफ में यूज किया है, राइट? नाउ वी मूव ऑन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द साइन इंटीग्रल. यू हैव टू फाइंड आउट, एंड व्हाट इज द साइन इंटीग्रल? साइन इंटीग्रल इज दिस वन, 0 to t sin u by u du. दिस इज द साइन इंटीग्रल. यू हैव टू फाइंड आउट इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे. So we take that 0 to t sin u by u du. Okay, so we write it 0 to t 1 by u. sin u की एक्सपेंशन क्या होती है आपको पता है? What is the expansion of sin x? That is x minus x cube by 3 factorial plus x cube by x 5 by 5 factorial and so on. Okay, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन होएगी और ओड पावर होएगी सब जगह, ये ध्यान रखना. तो u raised to power 1 upon 1 factorial minus u raised to power 3 upon 3 factorial plus u raised to power 5 upon 5 factorial minus u raised to power 7 upon 7 factorial and so on. Okay, so in this way it will be there. Now 1 by u is there, so just transfer this 1 by u into the bracket, you will get 1 minus u square by 3 factorial plus u 4 by 5 factorial minus u square by this.
you will get. Now you have to take the integration. So take the integration. When you take the integration, that becomes what? It will be u minus u3 by 3 into 3 factorial plus u4 by u4 by 4 इंटू में 4 फैक्टोरियल. ऐसे करके चलता रहेगा, लेकिन लिमिट उसके बाद क्या अप्लाई करनी है हमने? 0 से t. जब 0 से t लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ जहाँ u है वहाँ पर t यूज करोगे, सो दैट विल बी दिस वन. और जब माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो सब जगह u की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा सब जगह. सो इसलिए लोअर लिमिट मेरी क्या हो जाएगी? 0. नो नीड टू राइट. ओके, सो यू विल गेट दिस वैल्यू. अब हमारे इस इंटीग्रल को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई. अब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना था, तो टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस वन, दैट विल बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वन. ओके, सो वी आर टेकिंग now Laplace transform of this will be equal to this one. Now you can check Laplace transform of this one will be equal to Laplace transform of this one. जब इसका Laplace transform लोगे, आपको पता है Laplace transform आपका लीनियर होता है, so you will say that is linear. Laplace transform of t first term minus Laplace transform second term plus Laplace transform third term and so on you will take. When you take the Laplace transform of t, आपको फार्मूला पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस्ट पावर एन क्या होता है आपका? दैट विल बी इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस्ट पावर एन प्लस वन. और ये एक और फार्मूला होता है गामा ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एस रेस्ट पावर एन प्लस वन. लेकिन यहाँ पर ये जितनी भी टी की पावर है ये इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, सो वी विल यूज दिस फार्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस्ट पावर एन प्लस वन. सो यू कैन चेक दैट टी रेस्ट पावर वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 फैक्टोरियल अपॉन एस रेस्ट पावर 2, टी रेस्ट पावर 3 का 3 फैक्टोरियल अपॉन एस रेस्ट पावर 4. बाकी कांस्टेंट हम ऐसे कैसे लिख रहे हैं? 5 फैक्टोरियल अपॉन एस रेस्ट पावर 6, 7 का 7 फैक्टोरियल अपॉन एस रेस्ट पावर 8 वी विल राइट डाउन. ओके, नाउ 1 by s is throughout common, so when I just take 1 by s common, so when I take 1 by s the remaining term will be left this one. Okay, now you can see that this term is like this one, x minus x3 by 3 plus x5 by 5, there is no factorial, minus x7 by 7. अगर मेरे पास इस तरीके से एक्सपेंशन आती है, ये एक्सपेंशन किसके होते हैं? आपकी tan इनवर्स x की एक्सपेंशन है ये. ओके, तो अगर मेरे पास ये एक्सपेंशन है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है. एक तरीके से मैं इसका क्या सोच सकता हूँ? 1 by s माइनस 1 by s होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3. इस टर्म को इसे सोच सकता हूँ 1 by s रेस्ट पावर 5 डिवाइडेड बाई 5. इसे सोच सकता हूँ माइनस 1 by s रेस्ट पावर 7 अपॉन 7 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर x की जगह क्या है आपका? 1 by s. तो ये किसकी एक्सपेंशन होगी? tan इनवर्स 1 by s की. ओके, तो आपके पास क्या फार्मूला बना? 1 अपॉन s इंटू tan इनवर्स 1 by s. तो हमने देखा कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ है साइन इंटीग्रल का, वो हमारे पास ये आ गया. ओके, so just remember that Laplace transform of sin integral, that will be 1 by s tan inverse 1 by s. And remember that sin integral is 0 to infinity or 0 to t sin u by u into du. Right, now the next one is we will talk about the Laplace transform of the cosine integral. So cosine integral is what? First of all you have to know that what is the cosine integral. This is t to infinity cos x by x dx, right? So we have to find out its Laplace transform. तो पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका Laplace transform निकाल लेंगे. तो पहले इसे ही लिखते हैं वैल्यू. इसे सपोज दैट हम ft सपोज करते हैं, बिकॉज आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे फिर लिमिट पुट करोगे तो फंक्शन ऑफ t निकलेगा कुछ. ओके, तो इसलिए हमने इसे ft कॉल किया. लेट ft इक्वल टू दिस वन. अगर इसमें लिमिट चेंज करता हूँ मैं t टू इन्फिनिटी को इन्फिनिटी टू t करता हूँ तो माइनस साइन विल बी देयर, राइट. Now take the differentiation both side. When you take the differentiation, the left hand side will be f dash t and right hand side will be, जब differentiation लोगे तो integration and differentiation will be cancel out. When you take the differentiation तो यहाँ पर ये जो t है मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट है वो क्या है? आपकी वेरिएबल है. अगर वो वेरिएबल है तो लिबनिज़ रूल अप्लाई कीजिए. लिबनिज़ रूल अप्लाई कीजिए तो सबसे पहले तो जो डी बाई डी टी है आपका वो अंदर चला जाएगा, वो बन जाएगा कर्ल बाई कर्ल टी ऑफ कोस एक्स बाई एक्स. फिर प्लस अपर लिमिट का डेरिवेटिव होगा. अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद अपर लिमिट क्या है? टी. तो टी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा, दैट विल बी डी टी बाई डी टी.
इनटू में क्या बनेगा, इनटू में फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट में, फंक्शन क्या है cos x बाई एक्स है, तो x की डेरिवेटिव पुट करो cos t बाई टी, राइट। फिर माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी टी ऑफ इन्फिनिटी, ओके, एंड इनटू cos infinity by infinity, okay, that means limit t tending to infinity. So when you take its derivative, that becomes 0, constant value है, that derivative will be 0, right? So this term becomes 0. और यहाँ पर आपका t तो है नहीं, तो अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालता हूँ t के रिस्पेक्ट में, तो ये तो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये टर्म भी 0, तो आपका केवल क्या बचेगा dt बाई डी टी इंटू कोस टी बाई टी, ओके। और माइनस साइन बाहर था तो माइनस साइन ऐसे, क्योंकि माइनस साइन में बाहर लेकर चल रहे थे हम, ये माइनस साइन पहले से ही है बाहर, सो विल राइट डाउन माइनस साइन और क्या बचा आपका cos t by t, राइट। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस लीबनिज़ रूल वी गेट दिस वन, f dash t will be equal to this thing. Now just cross multiply or you will get t f dash t will be equal to minus of cos t. Now you take the Laplace transform both side. I take Laplace transform of t f dash t will be equal to माइनस ऑफ cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म s अपॉन s के प्लस 1, ओके। अभी आपने किया था सोल्व अभी पहले आर्टिकल में कि एफ टी इंटू एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेगी, पहले एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो, जो आएगा उसको एक टाइम डेरिवेटिव करना हमने एस के रिस्पेक्ट में और माइनस 1/1 इंटू करना है, ओके। सो यहाँ पर t⁻1 के लिए तो हमने लिख दिया -1/1 यानी कि माइनस और 1 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस डी बाई डी एस। अब एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, that is SFS minus F0, you know that formula, and right hand side is HT minus S upon SK plus 1, right? So what you have to do, बस F0 की वैल्यू देख लो क्या है पहले, तो F0 की वैल्यू हमें चाहिए, F0 हम भी ऊपर देखते हैं, F0 दिस वाज द दैट FT आपका ये था, x के 0 पुट करते तो क्या बन जाएगा, 0 से इन्फिनिटी बन जाएगा, 0 से इन्फिनिटी cos x बाई एक्स डी एक्स, राइट, इट विल बी देयर। जब इसे आप सोल्व करोगे तो इसका कुछ इंटीग्रेशन करोगे और लिमिट मेरी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी आपके पास, ओके, देयर विल नॉट बी एनी वेरिएबल। तो f0 की वैल्यू कुछ कांस्टेंट आएगी आपके पास, किसकी वैल्यू निकाले थे आप, f0 की, f0 की वैल्यू कांस्टेंट आई, तो वहाँ पर वैल्यू मैं कांस्टेंट यूज करता हूँ। व्हेन यू यूज f0 इज कांस्टेंट, तो f0 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s लोगे तो क्या बन जाएगा, 0, सो दैट मीन्स द सेकंड टर्म नो नीड टू राइट, we will write down only minus d by ds of SFS and write it is minus s by s square, okay. So just cancel out minus sign, there is no minus sign, and take the integration, जब इंटीग्रेशन लोगे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन विल बी कैंसल आउट, लेफ्ट हैंड साइड बचेगा SFS, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन, हाउ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, बस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, नीचे का डेरिवेटिव, नीचे क्या है टर्म आपकी डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2s, सो 2s आपका प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में, तो आपको पता है जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हो तो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन, इट विल बी log ऑफ द डिनोमिनेटर, तो इंटीग्रेशन विल बी log ऑफ द डिनोमिनेटर s के प्लस 1 एंड 1/2 बाहर था आपका, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक लिमिट s टेंड्स टू 0 बोथ साइड, आई विल टेक लिमिट s टेंड्स टू 0 दिस वन, सो जब s को 0 पुट करोगे दैट विल बी log 1 एंड log 1 आपका 0 होता है, तो 0 प्लस c दैट विल बी c ओनली, ओके। तो अभी हमने फाइनल वैल्यू थ्योरम की है कि लिमिट s टेंड्स टू 0 एस एफ एस को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ टी, ओके। तो इसकी जगह तो ये यूज कर दिया और राइट हैंड साइड में क्या था c, अब t की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं, पहले देखो एफ टी क्या था, ओके, तो एफ टी में t की जगह इन्फिनिटी यूज करेंगे, तो अभी हम ऊपर चेक करते हैं व्हाट इज एफ टी, अभी हमने देखा है कि ये आपका एफ टी था, तो अगर इसमें t की जगह मैं इन्फिनिटी यूज करता हूँ तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, अपर लिमिट लोअर लिमिट आपकी सेम हो गई, तो दैट वैल्यू विल बी 0, ओके। सो यू विल से दैट व्हेन यू आर टेकिंग t टेंड्स टू इन्फिनिटी तो उसकी वैल्यू आ गई आपकी 0, तो आप यहाँ चेक कर सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू आ गई 0, तो इसकी वैल्यू आप 0 पुट करोगे और c, दैट मीन्स c की वैल्यू आ गई आपकी 0, व्हेन यू गॉट द वैल्यू ऑफ c तो अगेन प्लेस देयर, हमारे पास ये वैल्यू आई थी, यहाँ पर हमने s की जगह और c की जगह क्या यूज कर दिया 0, c की वैल्यू पुट कर दी 0, सो हमारे पास फाइनली क्या बन गया, एस एफ एस विल बी इक्वल टू 1/2 log s के प्लस 1, ये आ गया,
राइट। सो एफ एस की वैल्यू क्या आएगी, 1/s 1/2s log of s के प्लस 1 डिवाइड बोथ साइड बाई s, राइट। सो व्हाट इज एफ एस हियर, जो हमारा राइट हैंड साइड में फंक्शन था उसे फंक्शन ऑफ टी सपोज किया था, तो फंक्शन ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वही तो एफ एस होता है। तो जो हमने कहा ये आपका एफ एस, एफ टी की जगह हमने एफ एस की जगह लिखा लाप्लास ऑफ एफ टी, और एफ टी था ये, तो लाप्लास ऑफ एफ टी क्या आ गया 1/2s इंटू लॉग ऑफ एस के प्लस 1। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कोसाइन इंटेग्रल था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा क्या आ गया 1/2s इंटू लॉग ऑफ एस के प्लस 1। ओके, सो इन दिस वे हम देख चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल इंटेग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, साइन इंटेग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एंड कोसाइन इंटेग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा। ओके, so just you remember this formula or you can derive by your own. Okay, so now there is an example, let us see about this. You have to prove that integral 0 to infinity j naught t minus cos t divided by t dt that will be equal to log 2 to the base e. Okay, so हमें पता है कि जब भी आपके पास लिमिट 0 से इन्फिनिटी आ रही है तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम क्या कर चाहेंगे, देखिए जो भी आपके पास फंक्शन है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, और फिर यहाँ पर ई रेस्ट और माइनस एस टी तो है नहीं, तो यानी कि एस की जगह 0 है, तो लिमिट एस टेंस टू 0 ले लेंगे बाद। तो आपका मेन रोल क्या है, मेन आपने जो ये है फंक्शन जे नोट टी माइनस कोस टी बाई टी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। लेकिन जब डिवाइड में टी हो तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, पहले आप न्यूमिनेटर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो। तो पहले हम न्यूमिनेटर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो न्यूमिनेटर जे नोट टी माइनस कोस टी। ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जे नोट टी माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोस टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जे नोट टी क्या होता था, हमने ड्राइव किया था पिछले लेक्चर में 1/√1 + s², और माइनस कोस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है s/s के प्लस 1। ओके, जब ये फंक्शन का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता चल चुका है न्यूमिनेटर का, इस न्यूमिनेटर का, तो अगर डिवाइड में टी हो तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, अगर डिवाइड में टी है तो जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकला है न्यूमिनेटर का उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एस टू इन्फिनिटी, with respect to s and limit is s to infinity, right? So we are just taking ये जो वैल्यू आई थी इसका लाप्लास सॉरी इसका इंटेग्रल ले रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू s, लिमिट इज s to infinity. Okay, because you know that लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft by t, कोई भी फंक्शन अगर t से डिवाइड है तो हम कहते थे पहले इस ft का निकाल लो लाप्लास, ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मान लो fs आ गया, तो इस fs की इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू s और लिमिट इज s टू इन्फिनिटी, ये होता था हमारा। तो हमारे यहाँ पर भी ये किया, इस एफ टी, ये आपका एफ टी है ऊपर वाला, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख दिया और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू s किया, लिमिट s टू इन्फिनिटी। नाउ वी विल सोल्व दिस वन, तो जस्ट इंटीग्रेशन सोल्व कर दीजिए। व्हेन यू सोल्व द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन यू जस्ट नो द फॉर्मूला फॉर दिस वन, 1/√a² + s² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ए की जगह 1 आपका, तो इट विल बी log ऑफ s + √s के प्लस 1, एंड माइनस ये तो आपका न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए बस यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 log ऑफ s के प्लस 1, राइट। सो इन दिस वी गेट द एंड, और क्या कीजिए जस्ट लिमिट अप्लाई कीजिए s to infinity। ओके, 1/2 को अगर मैं पावर में भेजता हूँ दैट विल बी log ऑफ √s के प्लस 1 हो जाएगा, s के प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 1/2, राइट। log m माइनस log n को लिख देंगे log ऑफ m/n, right? Now the limit is s to infinity. So what we do here, just we take an s from the numerator and the denominator, log तो ये है, s अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो s कॉमन लेने के बाद 1 + √1 + 1/s² होगा, और यहाँ पर s कॉमन लेने के बाद ओके रूट से बाहर आएगा तो s² कॉमन लेना पड़ेगा एक्चुअल में। ओके, इधर तो यहाँ पर क्या s² कॉमन लेगी तो √s² आएगा बाहर, तो दैट विल बी s and that will be 1 + 1/s², right? So ss will be cancel out and it will be this one. जब इसमें s टाइम्स टू इन्फिनिटी करोगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, ये 1/∞ 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 + √1, 1 + 1 1 और डिवाइड बाई 1, यानी कि 1 बचेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा log 2। और राइट हैंड साइड में अगर log ऑफ इसकी वैल्यू हम देखते हैं log ऑफ दिस वन,
राइट, ये वैल्यू ऐसे कैसे रखेंगे? सो यू विल गेट दैट जे नॉट टी, ये हमारे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, हमने वहाँ पे क्या लिख दिया, 0 to इन्फिनिटी, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये लिख रहे थे ना हम फंक्शन, जे नॉट टी माइनस कॉस टी बाई टी, तो उसकी डेफिनेशन लिख दिया हमने यहाँ पर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन आती है 0 to इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी फंक्शन इंटू डी टी दिस। लेकिन हमें एस तो चाहिए ही नहीं, तो हमें एस नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू 0 बोथ साइड। तो हमने लिमिट एस टेंड्स जब 0 लोगे, सो एस इक्वल टू 0 लोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 + 1 1, और नीचे बनेगा 1 + 1, राइट। इससे इट विल बी दैट इज 0 0 + 1, नीचे भी आपका 1 बनेगा, ऊपर भी 1 बनेगा, तो बन जाएगा 1/1, तो बनेगा आपका log 1। लेकिन log 1 क्या है, 0, तो यानी कि ये टर्म आपकी 0 बन जाएगी, तो केवल क्या बचेगा, log 2। ओके, सो यू राइट डाउन log 2। सो इन दिस वे यू गेट द इंटीग्रल ऑफ दिस function is equal to log 2, right? So now we complete the chapter Laplace transform. In the next class we will start inverse Laplace transform. Okay, so thank you very much, students.